Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to the next lecture. As you know, this lecture series is in respect of learning management systems with the course code of CSC 350. And this lecture series is coming from ComSat's Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. Dear students, in today's lecture we will first of all briefly review what we have done in the previous lecture, and then we'll move on to the second lecture, which is related to the understanding managers and the management system. Briefly overviewing what we have done in the previous lecture, we discussed the terms which make the title of this course: learning, management and systems. We discussed the objectives of this course, and then we started detailed discussion on learning, management and system, and then at length we discussed significance of this subject or the course. We also briefly discussed the importance of this course, how managers, the software engineers, the managers who ultimately become the part of the top management earn money, and I shared with you some of the top earning managers in the world. If after becoming software engineer or computer engineer, you develop your expertise in the management, then you are pursuing a very highly paid profession that is destined with the CEO of a company. And I shared with you the top 10 earning CEO of the world leading companies. In today's lecture, our discussion will be around significance of managers, how managers are important, if engineers become managers after learning the management skills, and how significant it is to become the part of the management. Then we'll discuss what is in fact the management system, the management process and functions, how they are related and how do they work together. And then after discussing the process and the functions, our discussion will reach the point where the managers make mistake. Now here at this point, when managers make mistake, either they learn, improve and move forward to the destination of CEO of a company, or they simply are driven out of the market and then they change their profession. They are compelled to change their profession or slightly tilt towards the similar professions where they think they can perform better. Our discussion will also cover the effectiveness and the efficiency of management, and then the management skills in classical perspective and the management skills which are part and the parcel of the game of today's corporate world, that is contemporary concept of the management skills. Then we'll also discuss learning management career, how far learning management career is a useful career, and whether it is enjoyable, beneficial and lucrative to pursue the career of
this learning management? Well, according to the sequence, we start our discussion on the role of management. Then in the end, we will conclude the session. The role of management. What is in fact the main role of the management, the top management? There are basically four major perspectives or the dimensions where the management plays its significant role. Number one, guiding the organizations towards the accomplishment of goals. So initially certain goals are set, and then a good management, a good manager is to pursue these goals towards accomplishment or completion. Because if a goal remains incomplete and the direction of movement of management is tilted or diverted, then this is mission incomplete, and mission incomplete is very dangerous. Certain things fall back, and the management has to either recollect and move again in the right direction, or, as I mentioned earlier, shift to some other direction which, according to the understanding of the management, is useful. So this is number one. So this first role of the management is setting the goal and then pursuing or taking the steps towards the accomplishment or the completion of these goals. Second, combine and use organizational resources to ensure organizations achieve their purpose. Management is generally well aware of the availability of resources. If the management is not aware of the availability of resources, then perhaps they may take wrong steps. If they know what are the resources available, how much the human capital is available, the labor strength, their skills, the amount of capital, the amount of finances, the resources, and the strength and the weaknesses of their product. Product can be in terms of software, the product can be in terms of the usability of this software in accordance with the requirements and the needs of the market. So if the management knows all these resources and it combines these resources in such a way that helps them to achieve their ultimate objective and the purpose. So this is here again the management plays very important role. So setting the goal, accomplishment of the goal, and then organizing resources for the achievement of the purpose. Third, the third area where management can play a very important role is encouraging the individual activities, starting activities which actually take the organization or the business or the corporations forward. Forward means in the right direction. So how individual can be encouraged? They can be appreciated for their good work. They can be offered bonuses. They can be offered extra leave. They can be offered extra amount of money or some other lucrative attraction if they are helping management in the achievement of their goals. This is encouragement. Similarly, promotion to the next scale, increasing the package, taking rest on certain occasions, foreign visits, and so many other things which can encourage the diligent
individuals contributing in the development of the organization or the corporations. So, number one, we discuss the management guides organization towards the goal accomplishment. Second, we discuss how resources can be utilized in the best possible way to achieve the goal and the purpose. And the third, how the team which is working under the top management can be encouraged to achieve the goals, organizational objectives. And number four, focus on activities or other factors that may get in the way of goal achievement. Now here there are so many factors which are in the complete monitoring process of the top management. Management must be quite familiar as to the factors, human factors, financial factors, machinery, the product, the hardware, the software, and so many other things. They actually focus on the leading parameter. They must focus on the leading parameters. For example, if the key product is software, then the software must be the focus of the management. And secondly, those factors which are engaged in the development, in the marketing, in the promotion of this software, they must be the focus of the top management. The top management must be familiar with their needs, their requirements, and the other resources which they need from time to time in order to accomplish or achieve the goal of the organization. So, summing up, essentially managers never take their minds off goal accomplishment. So, goal accomplishment is the top and number one objective of the top management, where management has to play its role. What is the management system, in fact? What is management and what is the management system? Management system is, in fact, a process which is around certain activities interrelated to each other. Different activities which are interconnected, interrelated, and how they are related, what is the process, at what stage the product is finalized, the initial step, the algorithm, developing the algorithm, trying the product, and then trying it, and then experimenting and finding the faults or the errors or the mistakes and learning, improving, and then basically linking these stages by which the process has to be completed. So, management system, in the management system, the first important thing is the process or the series of related activities. Management system is also defined, focused on reaching organizational goals. So, a series or a process, we can also redefine the management system. It is a process which is focused on reaching the organizational goals. Now, in this process, which step must be related to which, what is number one, what is number two, what is number 3, 4, and final destination is organizational goal. The organizational goals can be either in terms of capturing the market share, maximum sales. It can be the organizational goal can also be set in terms of profit maximization.
it can also be set in terms of driving out the competitors from the market by introducing better and better product. And the third way, there's another way to define management system: working with and through people and other organizational resources. As we discussed in the previous lecture, there are different amount of resources. There are different types of resources. And the major thing in the list of resources is human being. Management has to deal with the human being. So the management system, when we define management system, the most important thing is people. How to work with them, how to bring people together towards the access or towards the success level, to the extent of maximum success level. This is the management system. So what is management system? It is a system which actually involves a process. And what type of process? The process which relates different types of activities. Secondly, management system actually focuses on the reaching of ultimate organizational goals. So whatever process is followed to achieve the organizational goal is management system. And then working with and through people and other organizational resources. In other words, combining the resources in the best possible way is the management system. And combining the best possible, when we say combining the resources in the best possible way, it means the best possible way is what? It is a target or the objective set by the top management or the organization. So if we are moving towards the achievement of this objective, it means we are focused and we are utilizing resources in the best possible way. Now, having defined the management system, our next question is, what is in fact the process? Because here in the definition of management system, we were talking about the process or the series of related activities. So what is that process, or what is the series of activities? Or in other words, what are the functions which management perform? The process and the functions can be categorized into four. So there are 4 steps, or you can say 4 types of process through which management has to pass. The first process is planning, and the second is organization, the third is influencing, and the fourth one controlling. So 1, 2, 3, 4. So these are the processes through which management has to perform its function. So number 1, planning. Number 2, organization. Number 3, influencing, and number 4, controlling. Students, here this planning, organization, influencing, and controlling, although literally these words have English meanings, but in the management process they have their operational meanings. When I say operational meanings, it means their meanings have evolved over the years by the experience of the practitioners. Who are the practitioners? Those who have been developing products, the software, the hardware, the technology, the new consumer products. They have learned over the years certain meanings of these terms.
Now, what are those meanings? When we say planning, setting the organizational goals is planning, and then identifying the actions to achieve these goals. So planning is not only, the thinking of, dreaming of so many things and doing nothing. This is not planning. This is simple desire. And this desire remains unfulfilled if this desire is not associated with the possible actions which are required to achieve the goals. Now, what can be the organizational goals? The major one, there can be 1, 2, 3 different types of goals which can be set. It depends upon the nature of the product, nature of the business, nature of the corporations. The goal can be, say, 1 million USBs, production of 1 million USBs. The goals can be capturing 20% share of Asian software market. The goal can also be a replacement of local software apps by if the local market is habitual of consuming the foreign-made apps, the foreign-made products, the foreign-made software, the foreign-made the laptop, computers, and the other accessories, and mobile phones, cell phones, and the software which are the complementary part of the hardware. So if local market is dominated by the foreign products, then the goal can also be set by the local organization to get maximum share out of this foreign product sold in the local market. So how locally made apps, how locally made software, how locally made accessories can replace the foreign made product being used by our consumers. The goal can also be set by the organization to earn maximum profit, and that profit level can be defined. The goal can also be set in terms of maximization of the sales. The goal can also be at macro level self-sufficiency. If we are dependent on the foreign-made products, foreign-made software, foreign-made accessories of the computers, the goal can also be set to create self-sufficiency within the economy, within the country. But setting the goal is not planning. This is incomplete concept of planning. What actions will be taken to pursue these, to achieve these objectives? So students, listing the number of actions is also very important. Now, how actions can be listed? The line of action, the plan, how resources will be made available to achieve the objectives, to achieve the goals. And out of these actions, resources, how much will be in terms of equity, and how much of this will be in terms of debt, how much amount of resources will be made by the corporation itself, and what part of the products will be arranged from abroad or from the other vendors or the organizations. So this complete line of actions must be the part of planning. Otherwise it is not planning, it is simple desire. You cannot prolong, you cannot extend your efforts for indefinite period. Time must be set in order to accomplish the planning. For example, if
you are trying to develop apps locally, there must be certain time period set. There must be timeline developed by yourself. And you must keep in mind while giving the timeline that this timeline is rational. So rational means it is reasonable. You will be able to complete your product, complete your plan within this period. Well, after having defined, so briefly, what is planning? Planning means setting the goals, and number two, not only setting the goals, but listing the actions in very detail to achieve these goals. So if Pakistan is, for example, if we talk about at a large scale, if Pakistan is planning to overcome the issue of load shedding, the power shortage, this planning should be associated or supported with the clear listing of actions, whether this power supply will be through nuclear sources, electronic sources, through thermal sources, through coal sources, through water sources, and how these actions will be taken, how the actions will be taken towards these multiple sources of power generation for the economy of Pakistan. Second process after planning is organization. Once the planning has been done, once the goals have been set, once the actions have been identified, now the next thing is how to organize work. Who will do how much? How much amount of work? So the amount of work, this is also known as division of job. So what is division of job or division of labor? How many people are there? How many organizations or the departments are there in the pursuit of these goals which have been set in our planning? And who will do how much? And in how much time period? So this is very important. If the timeline is not given, if the resources, if the tasks are not assigned properly, then perhaps it will be difficult to act upon the planning. So in Pakistan, if we go by the Pakistani market, in any software development organization, first of all, at the stage of planning, we will have to set the goals. And how the goals will be set? We will look at the possible consumers, the users, and information about the users and the consumers, whether they are satisfied with the existing facilities, existing apps, existing electronic devices or not, to what extent they are. And then we will have to arrange resources, line of action, and who will do how much, what will be produced by which industry, which part of the industry, which part of the organization, and how ultimately all the tasks will be linked and organized, resources will be organized, and the product will be made available. Next is influencing. Students, जब प्लानिंग हमने कर ली, जब हमने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर दिए, जब हमने ड्यूटीज असाइन कर दी, कभी भी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, कभी भी ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो जाती, ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंसिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हर डिपार्टमेंट को जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं, उनको देखना, उनके साथ मिलना, उनसे रेगुलरली रिपोर्ट लेना, उनको गाइड करना,
If they are not on the right track, putting them on the right track. If they are partly on the track, putting them on the complete track. अगर वो सही काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करना, अगर उनको किसी लेवल पे मज़ीद कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, फर्दर डिवीज़न ऑफ लेबर की ज़रूरत है, फर्दर मैन पावर की ज़रूरत है, उसको देखना, ये मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मेन चीज़ मॉनिटरिंग और फिर मेजर करना कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना कि एक उनको अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दिए गए थे एक डिपार्टमेंट को और एक ख़ास पर्पस के लिए दिए गए थे, एक ख़ास वक्त के लिए दिए गए थे, क्या उन्होंने इसको मुकम्मल किया, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, क्या हम इससे बेहतर भी कर सकते थे रिसोर्सेज सेव करके, या अगर दो फर्ज करें हमने 2 सॉफ्टवेयर डेवलप करने थे और हमने 20 इंजीनियर्स लगाए, कंप्यूटर इंजीनियर्स लगाए, तो क्या ये काम 10 या 20 से कम लोग भी मुकम्मल कर सकते थे? इस चीज़ को देखना, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रूली मेजर करना, ताकि हम अगले स्टेप में रिसोर्सेज को सेव करके ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें और अच्छी मैनेजमेंट के साथ आगे चल सकें। इसलिए ये कंट्रोलिंग में जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, डिटर्मिनिंग इफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मॉडिफाइड टू मीट प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, कि जो स्टैंडर्ड्स, जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमने सेट किया था, क्या उससे बेहतर मजीद किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, उसके बाद ये 4 मेन प्रोसेसेस और फंक्शंस हैं। आप प्रोसेस भी कह सकते हैं कि इन प्रोसेस में से एक प्लानिंग मैनेजमेंट के ये प्रोसेस है, इनमें से हर मैनेजमेंट को गुजरना चाहिए टू हैव बेटर आउटपुट, या यूँ समझ लें कि ये वो फंक्शंस हैं जो किसी भी मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। अगर तो ये और ये चारों फंक्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग हो गई तो प्लानिंग वाला पार्ट जो है वो अब प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। प्लानिंग कमीशन ने बेशुमार 2025 विजन के तहत हमारे पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं। जब वो प्रोजेक्ट प्लान कर लिए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च हुई है, बहुत बड़ा एक रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स खर्चा आया है। अब अगली स्टेज पे अब प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। आगे जो जो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसमें एंगेज है, उन्हें उसने रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं। इसी तरह लेबर एंड मैन पावर डिवीजन ने रिसोर्सेज, फर्दर लेबर रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, और डीप डाउन इसमें फिर काउंसिल्स आ जाती हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल्स हैं और बाकी उन्होंने क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो प्लानिंग कमीशन कभी भी एक चीज़ बना के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसकी ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। कोई ना कोई उस मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में, मिनिस्टर लेवल पे या माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे एक इदारे का, एक इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है कि जो ये देखे कि ये चारों प्रोसेसेस, ये चारों फंक्शंस आपस में किस तरीके से सक्सेसफुली लिंक्ड हैं और कामयाब प्रोजेक्ट्स कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और गोल्स अचीव हो रहे हैं। लेकिन इन प्रोसेसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर प्रोजेक्ट में 100% ये चारों प्रोसेस कामयाब हो जाएं। इंसान गलती करता है, इसी तरह पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स,
मैनेजमेंट के लोग भी गलती करते हैं और उससे सीखते हैं। मैं आपके साथ स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करना चाहता हूं जो आम तौर पे मैनेजर्स करते हैं। मसलन प्लानिंग में क्या मिस्टेक हो सकती हैं? प्लानिंग में नंबर 1, नॉट एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज। अगर हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज में डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं किया तो प्लानिंग में गलती हो सकती है, और ऐसा हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में होता है, माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल पे, कॉरपोरेशंस के अंदर ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। इसके अलावा प्लानिंग आम तौर पे हम बहुत ही रिस्की ऐसे प्लान बना देते हैं जो कि बहुत रिस्की होते हैं और उनके रिस्क को प्लानिंग में एड्रेस नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी की कोई प्लानिंग की जाए तो विच इज़ हाईली रिस्की, और इसके रेडिएशन के इसके रिस्क से रिलेटेड जो मेजर्स हैं उनको प्लानिंग का हिस्सा ना बनाया जाए तो ये प्लानिंग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसी तरह आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी है, इनके सॉफ्टवेयर कितने वर्जन आ चुके हैं। एक वर्जन से लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, दे इम्प्रूव इट एंड देन दे bring better version of the computer software। तो ये मेकिंग प्लान, और उसमें यकीनन रिस्की इस सेंस में सॉफ्टवेयर रिस्की किस तरह हो सकता है? सॉफ्टवेयर रिस्की इस तरह हो सकता है कि यूज़र जो है, यूज़र की कुछ ऐसी चीज़ें हम एड्रेस ना करें जिससे डाटा उनका लॉस हो जाए। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और जब कस्टमर के पास चला गया, यूज़र ने जब उसको डिटेल में यूटिलाइज़ किया तो उसका डाटा लॉस हो गया, जिसमें उसको मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो गया। तो उस रिस्क को हमें कोई ऐसा एक डाटा बैंक साथ उसके एसोसिएट करना पड़ेगा जिसमें उसका ये रिस्क जो है मिनिमाइज और डाटा लॉस ना हो। इसी तरह प्लानिंग में तीसरी जो मिस्टेक हो सकती है वो नॉट एक्सप्लोरिंग एनफ वायबल अल्टरनेटिव्स फॉर रीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। मिसाल के तौर पे अभी मेट्रो प्रोजेक्ट जो हमने मुकम्मल किया है, ये अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च हुई है। इसके अल्टरनेटिव्स के तौर पर बाद में पता चलेगा कि क्या इसके अल्टरनेटिव इससे बेहतर हो सकते थे या नहीं। अगर तो इसके अल्टरनेटिव कुछ और बेहतर हो सकते थे जो कि बाद में पता चलेगा, तो फिर इसका मतलब है कि हमने बहुत नुकसान किया, हमने बेटर ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं किया। ये तो है प्लानिंग में। सो प्लानिंग में जो आमतौर पे प्लानर्स हैं, वो मैनेजर्स हैं जो प्लान कर रहे होते हैं, वो 3 किस्म की मिस्टेक करते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स को सही एस्टेब्लिश ना करना। नंबर 2, रिस्क लेवल को मेजर ना करना। नंबर 3, वायबल अल्टरनेटिव्स को ना देखना। बेहतर अल्टरनेटिव्स अगर मुतबादिल ऑब्जेक्टिव सेट हो सकते थे वो ना देखना। इसी तरह मैनेजमेंट में जो दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, इसमें आमतौर पे क्या मिस्टेक हो सकती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हम सिर्फ एज इंजीनियर्स ना सोचें, बल्कि हमने ये सारी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना है और अपने रिस्क को कम से कम करना है और अपनी अचीवमेंट्स को और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है? 3 मिस्टेक जो आमतौर पे करते हैं। नंबर 1, हम डिपार्टमेंट अप्रोप्रिएटली एस्टेब्लिश ना करें। जैसे एडहॉकिज्म आमतौर पे हमारे डिपार्टमेंट्स में देखने में आता है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर हमने हायर किया,
उसी को टाइपिंग पे भी लगा दिया और उसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी लगा दिया, उसी को वेबसाइट की मेंटेनेंस पे भी हम लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि हम सारे काम उसे कर ले रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि वो किस फंक्शन में ज़्यादा बेस्ट है और उसको उसी फंक्शन में लगाया जाए। दूसरा जो है, अगर हम कोऑर्डिनेशन पे एम्फेसाइज ना करें, हर मेंबर को, हर सब डिपार्टमेंट को हमने असाइन तो कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि क्या इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन भी है कि नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में आम तौर पे स्लेट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें स्टूडेंट का डाटा, जिसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा, जिसमें स्टूडेंट्स के एग्ज़ामिनेशन और उनकी ग्रेडिंग का डाटा जो है रखा जाता है। अब अगर हम यूनिवर्सिटी में देखें तो टॉप मैनेजमेंट में रेक्टर लेवल आता है और रेक्टर ऑफिस स्लेट को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है। अगर उसकी मॉनिटरिंग नीचे ट्रिकल डाउन सब डिपार्टमेंट्स तक फिट नहीं है, मिसाल के तौर पे एक एकेडमिक मैनेजर है जो एग्जामिनेशन को देख रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है, डाटा मेंटेन कर रहा है कि एक स्टूडेंट किस लेवल पे कौन से कोर्सेज रजिस्टर कर रहा है, क्या उसने सीक्वेंस में लिए हैं, सीक्वेंस में नहीं लिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि एकेडमिक मैनेजर जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम कर रहा है और जो स्लेट में इस चीज़ को देख रहा है कि स्टूडेंट रजिस्टर करना, अगर उसको उस सिस्टम की ये समझ नहीं है कि सीक्वेंस में प्री रिक्विजिट कोर्सेज कब लेने थे, एडवांस कोर्सेज और इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज कब लेने थे, और वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर रहा और उसकी कोऑर्डिनेशन नीचे एकेडमिक मैनेजर से एकेडमिक ऑफिसर तक उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, और एकेडमिक ऑफिसर जो कि फ्रंट पे स्टूडेंट्स को डील कर रहा है और वो रजिस्टर किए जा रहा है, तो इन दोनों में अगर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक बड़ा इशू उस वक्त जाके बनता है जब सॉफ्टवेयर कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर, कंप्लीशन ऑफ डिग्री के ऊपर एक फाइनल ट्रांसक्रिप्ट निकालता है, और ट्रांसक्रिप्ट में ये चीज़ हाईलाइट होती है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट में 20% ये कोर्सेज होने चाहिए थे, 20% वो होने चाहिए थे, 20% सी कैटेगरी के, डी कैटेगरी के होने चाहिए थे, और वो नंबर तो 130 क्रेडिट पूरा हो गया या 135-36 क्रेडिट पूरा हो गया, लेकिन उस प्रोपोर्शन को सही फॉलो नहीं किया गया। अब अगर इनके दरमियान ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यकीनन ये प्रॉब्लम आता है, और ये स्लेट के इश्यूज बिल्कुल मौजूद हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो स्लेट को फॉलो करती हैं। इसी तरह जो तीसरा जो प्रॉब्लम आमतौर पे आता है, एस्टैब्लिशिंग इनअप्रोप्रिएट स्पैन्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैनेजमेंट में भी अगर सही स्पैन इनअप्रोप्रिएटली अगर स्पैन सेट किया गया है तो फिर वो फिर ठीक नहीं होगा। इसमें टाइम का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट का कौन सा कंपोनेंट किस टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है। अगर टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेट रिस्पॉन्ड करता है, तो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीशन के बाद मुमकिन है सॉफ्टवेयर उसको डिलीट कर दे, तो वो फिर बिल्कुल एक यूजलेस एक्टिविटी हो जाती है। इन्फ्लुएंसिंग की स्टेज पे क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? नॉट टेकिंग टाइम टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स। गलती हाईलाइट हुई, रिसोर्स कंस्ट्रेंट पॉइंट आउट हुई, लेकिन अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया, कम्युनिकेट नहीं किया गया कि उसका एक्शन जो था उसने क्या लेना था वो नहीं किया गया, तो फिर प्रॉब्लम आएंगे। इसके अलावा अगर इन्फॉर्म किया गया है तो इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सपोर्टिव नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से मसला हो सकता है। बीइंग मैनेजर बट नॉट ए लीडर, कि सिर्फ मैनेजर ही बन के हम सोचते जाएं, यानी सिर्फ इन प्रोसेसेस को हम देखते जाएं और फ्रंट से लीड ना करें। लीडर कौन होता है? जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, जो मुश्किल सिचुएशन में
सलूशन निकालता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ फंक्शंस में रिस्क को मिटिगेट करता है, रिस्क टेकिंग करके उसको रिजॉल्व करने की, रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। तो मैनेजर और लीडर में ये फ़र्क है। तो मैनेजर अगर एज ए लीडर उसको प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हो तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कंट्रोलिंग में भी गलती हो सकती है। नंबर 1, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कैरिंग आउट प्लान जो है वो सही नहीं है, सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही। कोई अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट नहीं किए गए। एक चेक लिस्ट होती है जिसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स को 1 2 3 टिक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड अचीव हो गया, प्रोडक्ट बन गई, ये स्टैंडर्ड अचीव हो गया, गुड। ये इस तरह से चेक लिस्ट होती है। अगर हमने कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किए, चेक लिस्ट, कोई बेंचमार्क हमने सेट ही नहीं किया, अगर हमने कोई चीज़ डेवलप की, कोई प्रोडक्ट बनाई, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कोई एसेसरी, और उसकी एफिशिएंसी को हमने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया, तो फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम आएंगे। तो उसके कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। आम तौर पे स्टैटिस्टिकल टूल भी इसके लिए यूज़ होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। कि फ़र्ज़ करें अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एसेसरी हमने इंट्रोड्यूस करवाई और वो लाखों की तादाद में हमने मैन्युफैक्चर कर दिया और उन कंज्यूमर से डाटा नहीं लिया जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने परसेंट जो एसेसरीज हैं, जो प्रोडक्ट हमने बनाई हैं, उनमें से कितने परसेंट हम जो है वो हाईली यूज़फुल रहे हैं और कितने परसेंट में जो हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था, साइज़ था या कैपेसिटी थी, वो सही नहीं हो सकी। तो इसके लिए आम तौर पे कई किस्म के एनोवा टेस्ट वगैरह हम स्टेटिस्टिकली यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑन दी एवरेज कितने हैं जो स्टैंडर्ड पैरामीटर से डिविएट कर गए हैं और कितने हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आम तौर पे हम प्लानिंग में या ऑर्गेनाइजेशन में या इन्फ्लुएंस में या कंट्रोल में हम करते हैं एज मैनेजर्स। तो मैनेजर को हमेशा फोर फ्रंट पे लीडर के तौर पर सोचना पड़ता है, फिर जाके ये जो मिस्टेक्स हैं इनको ओवरकम किया जा सकता है, वरना इट विल बी सिंपल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगली स्टेज पे मैनेजमेंट के अगले स्टेप पे आते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ये जो मैंने डिस्कस किए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी इंटर रिलेटेड है और कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक को समझ के बैठ जाएं तो फिर कोऑर्डिनेशन का इशू आता है और बहुत सारे पार्ट्स में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर हम मार्केट में सक्सेस स्टोरी बिल्ड नहीं कर सकते। इस डायग्राम में टॉप ऑफ द लिस्ट जो बॉक्स बनाया गया है ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और नीचे वो 4 प्रोसेस दिखाए गए हैं जो आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड होके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से प्लानिंग इन्फ्लुएंसिंग के साथ रिलेट ना कर रही हो या कंट्रोल के साथ ना हो या ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लानिंग के साथ सही कोऑर्डिनेटेड ना हो, ये एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग ऑल द 4 प्रोसेस एंड द फंक्शंस। अगर इनके दरमियान आप देखें ये सब म्यूचुअली बोथ वेज प्रोसेस एरोज दिखाए गए हैं, कोई भी एरो एक डायरेक्शन में नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, सिर्फ एक एरो जो अपवर्ड जाते हुए आपको नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
तो ये तमाम चारों प्रोसेसेस, तमाम चारों फंक्शंस आपस में इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो ये कि कॉरपोरेशंस के अल्टीमेट गोल्स को अचीव करना। वो गोल्स क्या हो सकते हैं वो मैं पहले डिस्कस कराया हूँ। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, ड्राइविंग आउट कंपेटिटर्स को लेट डाउन भी करना हो सकता है, और मार्केट में मैक्सिमम शेयर एक्वायर भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, या कोई और ऑब्जेक्टिव जो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय द न्यू प्रोडक्ट। द पॉइंट इज, आप कभी भी इसमें इन चार फंक्शंस का अगर आप हिस्सा हैं या आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, तो कभी भी ये मत समझें कि आपने एक काम कर दिया तो इसका मतलब है कि बाकी सब ने कर दिया। नहीं, इसमें हम जिस स्टेज पे भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस का भी हिस्सा हों, हमें चाहिए कि हम बिल्कुल अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, इस सेंस में कि कब कहाँ किस चीज़ को मॉडिफाई या चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो क्या प्रोसेस और रिसोर्सेज हैं जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में प्रोसेस एंड रिसोर्सेज को डिस्कस किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी कुछ डिटेल्स आपको बताई थी। ये फर्दर डिटेल जो है प्योरली एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर मैनेजर के तौर पर और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। चार फैक्टर्स जिनको हम मेजर रिसोर्सेज कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो लिस्ट किए गए हैं। नंबर 1, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में लेबर कहा था, तो यहाँ पे उसको ह्यूमन रिसोर्स के नाम से लिखा गया है। इसके कई टर्म्स यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होती हैं। दूसरे नंबर पे मॉनेटरी रिसोर्सेज का जिक्र किया गया है, और तीसरे नंबर पे रॉ मटेरियल, और चौथे नंबर पे कैपिटल। ये वो रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन रिसोर्सेज को एक बैलेंस वे से कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट के लिए नहीं लगाएंगे, तो वी विल बी वेस्टिंग वन ऑफ दीज रिसोर्सेज और मोर ऑफ दीज रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे हम पैसा या मॉनेटरी रिसोर्सेज ज़्यादा लगा रहे हों और दूसरी तरफ उतने प्रोपोर्शन से, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन से रॉ मटेरियल कम हो, so then it will be underutilization of the monetary resources and overburdening of the raw material. इसी तरह कैपिटल की एक कैपेसिटी है। अगर एक कंप्यूटर हम यूटिलाइज कर रहे हैं 8 शिफ्ट्स में, 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की, और हम ह्यूमन रिसोर्सेज उसके ऊपर, यानी कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है उसके ऊपर हम ज़्यादा लगा देते हैं, तो इट विल बी सिंपल वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। हम उनको तनख्वाहें भी दे रहे होंगे, लेकिन उनको काम करने के लिए कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली या एडवर्सली इफेक्ट होगी। इसके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस। तो एक इफेक्टिव मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस हम किसे कहते हैं, कि जब इन रिसोर्सेज को अपने गोल अचीव करने में इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही हो, जब मैनेजमेंट ये जो ऊपर लिस्ट किए गए हैं रिसोर्सेज, इनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही हो। इफेक्टिवली यूटिलाइज से क्या मुराद है कि अगर 8 घंटे के लिए एक वर्कर को हायर किया गया है और काम हमारे पास सिर्फ 4 या 6 घंटे का है, तो फिर हम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं।
तो ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए और फिर हमें रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिलती है कि हम इन रिसोर्सेज को कितना इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड फिर आगे जाके हमारी जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अगर हम रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो फिर मैनेजरियल एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या है कि कितना प्रोडक्टिव आउटकम हम रिसीव कर रहे हैं गिवन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट, हम उसको कम से कम अमाउंट ऑफ इनपुट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ आउटपुट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो हम मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ इनपुट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट अचीव कर रहे हैं तो इसको हम मैनेजरियल एफिशिएंसी कहेंगे, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मैनेजरियल इनएफिशिएंसी कहलाएगा। ये हमने एक कोऑर्डिनेटेड बॉक्सेस बनाए हैं जिनकी मदद से ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इनपुट से मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो है वो हासिल हो सकता है। पहले बॉक्स में वो रिसोर्सेज जिनको कंबाइन किया जाता है, जिनको हम कहते हैं इनपुट्स, इनको प्रोसेस में से, प्रोडक्शन प्रोसेस में से किस तरह गुजारा जाता है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस कितना इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्टिवली इनको कंबाइन करता है, और अगर वो इफ़ेक्टिवली कंबाइन करता है और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो फिर हम कहते हैं कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, विच इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, इसको हम सम अप इस तरह करेंगे इन 4 बॉक्सेस में। ये रिसोर्स यूज़ की एक पिक्चर दिखाई गई है वर्टिकली, और नीचे जो है वो गोल अकम्पलिशमेंट दिखाया गया है। एफिशिएंट क्या है? अगर हम मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोडक्शन तो हम, इसका मतलब है हम एफिशिएंट हैं। और इनएफिशिएंट का क्या है कि जब हम यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन रिसोर्स वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। ये रिसोर्स वेस्टेज इन चारों में से कोई भी हो सकती है। मसलन पैसा, फाइनेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं, या मैन पावर ज़्यादा एम्प्लॉय कर दी गई है, या मशीन या टूल जो है हमने बड़ी एक्सपेंसिव लगा दी है लेकिन वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसमें भी इनएफिशिएंसी का ये रोल आता है। ये वही जो पीछे मैंने डिस्कस किया है उसी का ये एक सम अप है कि किस तरीके से ये चारों चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं और किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव वे से रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसमें मैनेजरियल स्किल तकरीबन हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट के बगैर साइंटिस्ट भी नॉन प्रोडक्टिव साइंटिस्ट होगा और बाकी लोग भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, अगर वो भी सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो उनके लिए भी एक रेलेवेंट चीज़ है कि वो भी इसको समझें और समझने की कोशिश करें। तो मैनेजमेंट को समझना इस यूनिवर्स में हर एक के लिए ज़रूरी है ताकि वसाइल का ज़िया ना हो, ताकि वसाइल जो हैं वो वेस्ट ना हो। और इसके परसूट में कई थ्योरीज डेवलप हुई। एक थ्योरी जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। तमाम मैनेजर्स के अंदर कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ मैनेजर्स उससे वाकिफ़ होते हैं और अक्सर मैनेजर उससे वाकिफ़ नहीं होते कि उनके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। उनको लर्न करना पड़ता है, या तो वो तजर्बे से सीखते हैं या फिर उनको बहुत जल्द ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और ये कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? जो उनका मॉनिटरिंग प्रोसेस है, जो ऑडिटिंग प्रोसेस है, उससे
वो देखते हैं कि क्या वो सही काम कर रहे हैं, जो उन्होंने टारगेट और गोल रखा था वो अचीव किया है या नहीं। जैसे मैंने बताया कि चेक लिस्ट लाजमी होनी चाहिए। चेक लिस्ट से पता चलता है कि वो अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो है अपने आप को इवेल्युएट कर सकती है कि जो उन्होंने टारगेट रखे थे वो अचीव हुए, किस हद तक हुए, उससे वो अपनी एफिशिएंसी को और अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन सी करैक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए बाज़ औक़ात फिर अगर कोई मैनेजमेंट में कोई ऐसे फॉल बैक आ रहा है, कोई रिट्रीट हो रहा है, कोई टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का है सिलसिला, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बाज़ औक़ात जो थ्योरी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ये बताती है कि अगर लोगों के अंदर एक वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको पॉलिश करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं से इंश्योर करते हैं कि वो मेड अवेलेबल हो, और मैनेजमेंट और ह्यूमन बीइंग जो मैनेजमेंट में है, ह्यूमन कैपिटल जो मैनेजमेंट में है, वो उन करैक्टरिस्टिक्स को बेहतर तरीके से पॉलिश करके यूटिलाइज कर सके और ज़्यादा प्रोडक्टिवली एफिशिएंसी की तरफ जा सके। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे हेनरी फेयल है, ऑल मैनेजर शुड पोजेस सर्टन करैक्टरिस्टिक्स, ये उसका एक सम अप है जो मैंने डिटेल से बता दिया। एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज़, तो पर्सनल क्वालिटीज़ यही हैं। अगर कोई शख्स कॉन्फिडेंस होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। तो इंसान के अंदर जो बेहतर क्वालिटीज़ हैं मैनेजरियल और करैक्टरिस्टिक्स की, वो ये कि वो हमेशा अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखे कि वो नई से नई और बेहतर से बेहतर चीज़ सीखने की कोशिश करे, और उसको फिर इम्प्लीमेंट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं? अगर आप इस स्लाइड को पढ़ें तो मैनेजमेंट स्किल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन एबिलिटी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। और ये गोल अकेला कोई भी शख्स अचीव नहीं कर सकता, कोई सब डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकता। उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत होती है, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में आपस में लिंक होना, ताल्लुक़ होना, और हर स्टेज पे जितना काम हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक बड़ी मशहूर एक एग्जांपल है लिटरेचर में कि कॉमन पेन जो हम बनाते हैं, अगर कॉमन पेन के प्रोसेस में एक आदमी जो है एक स्टेज पे उसकी एक स्टेज पे उसकी पॉलिशिंग और उसकी जो है उसकी रिफाइनिंग हो रही हो, और दूसरी स्टेज पे कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हों उसको काटने में, और तीसरी स्टेज पे उसको शेप देने में, और चौथी स्टेज पे उसकी पैकिंग में, अगर इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है और हर स्टेज पे काम करने वाले लोग दूसरी स्टेज की कैपेसिटी को नहीं समझ पा रहे, तो फिर ना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, बल्कि ज़्यादा आउटपुट भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कंपनीज को जो है मैनेजमेंट स्किल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें कंपनीज फोकस करती हैं टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्किल, क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्किल ये है, टेक्निकल साइड पे
there must be ability to apply specialized knowledge and expertise to work related procedures. के जो स्पेशलाइज नॉलेज है, जो टेक्निकल नो हाउ है, जो हमने अप्लाइड साइंसेस से सीखा है, उसको यूटिलाइज करने की सलाहियत मौजूद हो। दूसरी स्टेज पे इंडिविजुअल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिल्ड करने की सलाहियत हो। और कंसेप्चुअली देयर मस्ट बी एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, यानी टेक्निकल नॉलेज हो, नंबर 2 ह्यूमन बीइंग आपस में कोऑर्डिनेटेड हों, और नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो सामने हो। अगर टेक्निकली सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो एक्सपर्ट हैं, उनके पास नॉलेज है, और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर ये टीम वर्क नहीं होगा, ये इंडिविजुअल एफर्ट होगी और अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव नहीं हो सकेगा। क्लासिकल व्यू को हम इस तरीके से सम अप कर सकते हैं। मसलन स्किल्स कौन सी नीडेड हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए, जो इम्पोर्टेंट जो स्किल रिक्वायर्ड है जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो क्या है कि उनके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर टॉप मैनेजमेंट के पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा नज़र आता है कि टॉप मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है, कितने टाइम पे अचीव करना है, और इसलिए वो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो है वो कंसेप्चुअल स्किल की बजाय ह्यूमन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे के काम को समझ सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें। और नीचे बॉटम में इस पिरामिड में वह सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल की जो मैनेजमेंट है उसका टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर उसकी टेक्निकल स्किल नहीं है तो प्रोसेसेस आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम, जैसे मैं रिपीटेडली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्स कोई डेवलप करनी है और नीचे लेवल पे चूँकि आमतौर पे ज़्यादा लोग होते हैं काम करने वाले, अगर उनके पास टेक्निकल स्किल ही नहीं है तो उस मिडल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, जितना मर्जी वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करे, इसलिए कि उनके पास नीचे लेवल पे स्किल ही नहीं है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने की, तो वो कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए ये एक पिरामिड में पहला स्टेप है कि टेक्निकल स्किल ये कैसे आएगी, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने में, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने में, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा, ये इंट्रोड्यूस करवाने से नीचे जो टेक्निकल स्किल है वो डेवलप होगी, और फिर उससे ऊपर ह्यूमन स्किल, और फिर कंसेप्चुअल स्किल जो है इसी तरह टॉप मैनेजमेंट में आती है। जो कंटेम्प्रेरी व्यू है मैनेजमेंट स्किल का, वो टास्क रिलेटेड है, पीपल रिलेटेड है और चेंज रिलेटेड है। यानी आजकल के दौर में अगर हमारी एफर्ट्स जो है, यानी ख़ास तौर पे मैं आखिर पे ज़्यादा फोकस करूँगा चेंज रिलेटेड एफर्ट्स एम्ड एट मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स। अगर मैनेजमेंट के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल के कंपोनेंट्स को चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट कंडीशंस, तो फिर जो हमारा जो टास्क रिलेटेड और पीपल रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। ये एक समरी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये डिटेल मैंने बता दी कि, और इनकी एक ब्रीफ एक सम अप किया हुआ है कि किस तरीके से आजकल के दौर में ये स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस में
हमारी जो कंटेम्प्रेरी व्यू है मैनेजमेंट स्किल का, कि एक मैनेजमेंट स्किल कि ये वो पॉइंट्स है जो मैनेजमेंट स्किल का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें जैसे क्लैरिफाइंग द रोल्स, मॉनिटरिंग ऑपरेशंस, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कंसल्टिंग, सपोर्टिंग, रिकग्नाइजिंग एंड डेवलपिंग, ये वो कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट के स्किल्स हैं जो कि हमें मार्केट में कंपेटिटिव बनाते हैं। मैनेजमेंट करियर्स, क्या मैनेजमेंट को एज ए करियर हमें परसू करना चाहिए? नहीं, तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सीक्वेंस ऑफ वर्क रिलेटेड पोजीशंस ऑक्युपाइड बाय ए पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम। करियर की डेफिनेशन क्या है? करियर की डेफिनेशन ये है कि वो एक्सपर्टीज़, वो पोजीशन जो एक स्किल्ड आदमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव करता है, उसको करियर कहते हैं। हम डेली लाइफ में आम बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंसेस का में जाने वाले लोगों का करियर क्या है। उसका मतलब ये होता है कि आप फर्दर कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो ये करियर का मतलब ये है कि कितना आप ग्रो करेंगे, कितना लर्न करेंगे, कितना अचीव करेंगे, कितना अर्न करेंगे, इसको करियर कहते हैं। तो ये ओवर द इयर्स इंसान सीखता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, लर्न करता है, और इसको हम कहते हैं करियर। ये कुछ एज के साथ इसको रिलेट किया गया है कि किस तरीके से एक इंसान, एक टेक्निकल पर्सन जो है अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरता है और कितना शार्प, किस लेवल पे उसकी शार्प ग्रोथ होती है और फिर वो स्लो ग्रोथ हो जाती है। आप देखें इसमें ज़्यादा शार्प ग्रोथ आपको बिटवीन द एज ऑफ 25 और तकरीबन 40-44 जो है एक शार्प ग्रोथ नज़र आती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 35 की एज से पहले इंसान की मेंटल फैकल्टीज इतनी शार्प होती हैं कि वो बड़ी तेज़ी से नई नई चीज़ें सीख लेता है। फिर अगर वो रेगुलरली इन टच है तो फिर लेटर स्टेज पे भी वो सीख सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर उसकी हैबिट्स नहीं है तो फिर उसके अंदर अडाप्टेबिलिटी स्लो होती जाती है और अल्टीमेटली जब वो 50s में आता है तो अडाप्टेबिलिटी ना होने के बराबर होती है। अगर तो बहुत शार्प तरीके से आया है तो फिर तो वो मेंटेन भी कर सकता है और फर्दर इसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट स्लो होती है 45 के बाद। तो बहरहाल एक मेंटेनेंस और स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। इसलिए आमतौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो एक्सपीरियंस लोगों को बिल्कुल प्रेफर करती हैं, लेकिन उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि जिनको उन्होंने खुद ग्रो किया है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करके आ रहे हैं, वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक हाईली ट्रेंड और हाईली प्रोडक्टिव एफिशिएंट वर्कर मिल जाए। तो बहरहाल इसमें एक लाइफ टाइम यानी बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 65 एक लाइफ साइकिल दिखाया गया कि किस तरीके से इंसान ग्रो करता है। इस टेबल में दिखाया गया कि किस तरीके से फिर आप अपना करियर जो है वो प्लान कर सकते हैं। टेबल का जो नंबर्स हैं 1.3 यहाँ पे ये सीक्वेंस असल में लेक्चर 1 के साथ लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग जो है। यहाँ एक जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने जेंडर को डिस्कस किया था, तो जेंडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब वुमेन, डुअल करियर कपल्स और ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज में डिस्कस होता है, आपको सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करवाना है कि चैलेंजेस जो हैं मार्केट में सिर्फ मेल का मेल के साथ चैलेंज नहीं है, बल्कि वुमेन जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन अब मार्केट में है,
और वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है जब अगर हम इस करियर को मैनेजमेंट यानी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के करियर को परसू करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक हमारे लिए एक चैलेंज है। ये वुमेन इन द मैनेजमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको आप पढ़ें, दिस इज़ वेरी यूज़फुल। ये 7 स्टेजेस बताई गई हैं जो कि बेसिकली किसी वुमेन की डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। लेट अस नाउ सम अप स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट और लर्निंग क्या होती हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरह से लर्निंग जो है ओवर द ईयर स्किल को इम्प्रूव करती हैं, और मैनेजमेंट की क्या स्टेजेस हैं, क्या फंक्शंस हैं, और किस तरीके से मैनेजमेंट की फील्ड में करियर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यूमुलेट होता है और करियर बिल्ट होता है। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ये वो बुक्स हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी शेयर की हैं, लेकिन किसी तरह ये पहले लेक्चर के एज ए कंपोनेंट शेयर नहीं हो सकी। नाउ आई एम मेकिंग दिस एज पार्ट ऑफ द सेकंड लेक्चर. You can buy these books.